Instance of keyword is what? Now, when you are creating a object of class to check whether the object is giving a reference to which class, for checking that, we're using use instance of keyword. In previous example that already we have discussed that in homogeneous and heterogeneous you are creating a object of class, but it is giving a reference to the other classes, or it is giving a reference to the child classes. Instance of saying that, or it is a operator. In operator chapter we have discussed we have discussed it, that it is checked the class reference. आपका जो क्लास का जो रेफरेंस है उसको वो चेक करके बताएगा. Okay, so I show you what exactly this means. See there. Casting object is used where you have received a reference to a parent class and you want to give a functionality and you want to access the functionality of the child class. Okay, you want to access the functionality of the child class. At that timing, we are using casting. Casting is of two types in Java. One is object casting, another is typecasting. Typecasting means you have to convert one data type to the another data type, that is called the typecasting. Object casting means that you are creating a object of class and you are giving a reference to the child class. With that object, if you want to call all the functionality of the child class, then we are used for casting. So casting object is used where you receive a reference to a parent class का reference आप बना रहे हो और child class का functionality वो call कर रहा है. Use instance of to test the type of the object. Instance of keyword हम use करते हैं तो वो check करेगा type of the object. Restore the full functionality of the object by casting. Restore the full functionality of the object by casting. Check proper casting using the following guideline. Cast upward in the hierarchy are done implicitly. Cast upward in the hierarchy means upcasting. Okay, जिसका मतलब है आप parent class का object बना रहे हो और parent class का object में child class का object आप initialization कर रहे हो. So that is called the what? Upcasting. So I will show you. Just a minute. Upcasting is what? Suppose I create a parent class employee. This employee having two child class. One is sorry. Suppose I define one company. Company is having a manager, or you can say like employee. Employee is a parent class, and here manager and director
is called as the child class. The manager, employee is the parent class. Manager and director is called as the child class. Now what happened? I am creating an object of employee class. Suppose the manager class contains some function, display function. मैनेजर क्लास में कुछ फंक्शन है डिस्प्ले, डायरेक्टर क्लास में कुछ फंक्शन है सपोज शो फंक्शन, तो ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप में है। तो मैं अभी चाइल्ड क्लास का फंक्शन को कैसे एक्सेस करूंगा? चाइल्ड क्लास का फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मुझे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। manager aim equals to new manager, aim equals to new manager aim is equals to new manager. Then I define director D is equals to new director, और ये जो एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाता हूँ। एक है एम्प्लॉय E1 is equals to न्यू एम्प्लॉय, इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पर डिफाइन करूंगा एम्प्लॉय E2 is equals to न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया। अभी मैं क्या करूंगा, ये लाइन के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E1 is equals to M, मतलब E1 is the object of employee class, E1 is equals to M. Then I can define E2 is equals to M. E1 is equals to M, or I can define E2 is equals to M. Okay, E1 is equals to M, or I can define E2 is equals to M. So two objects here I define. तो ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम पास कर रहे हैं, तो हम E2 is equals to D, तो ये जो E1 ऑब्जेक्ट के मदद से मैं मैनेजर क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको कॉल कर सकता हूं, और जो E2 ऑब्जेक्ट है डायरेक्टर क्लास का जो शो फंक्शन है इसको कॉल कर सकता हूं। इसको बोला जाता है अपकास्टिंग। ओके, और डाउनकास्टिंग में क्या हुआ था ना, सपोज ये ऑटोमेटिक होता है, इट इज हैपन इम्प्लिसिटली। तो डाउनकास्टिंग में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ना, एम्प्लॉय क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन एट रन टाइम हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं चाइल्ड क्लास को। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो आई हैव टू चेंज हियर, I have to change here. How I have to change here? देखो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय में सपोज पेरेंट क्लास है, तो क्लास एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, इसमें एक फंक्शन है void डिस्प्ले फंक्शन, void डिस्प्ले फंक्शन है। तो और एक क्लास में बना रहा हूं क्लास मैनेजर which is class manager which extends from employee. Okay, so here manager is your child class. Here manager is your child class. The class employee, then class manager extends from employee. So manager is your child class here. Then if I call the function void display, it is good,
because method is overridden here. But here another function is present, void manage function. If you call this manage function, yes, any doubt? It is सर और एक बार समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। ये में सिर्फ लिखा हूं क्लास एम्प्लॉई एक डिफाइंड क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन मैंने डाल रहा हूं वॉइड डिस्प्ले। ओके जी, जैसे कि नॉर्मली एक फंक्शन डिफाइन होता है, फिर यहाँ पर देखिए कि मैनेजर क्लास है एक्सटेंड्स फ्रॉम एम्प्लॉई, तो मैनेजर यहाँ पर क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है ये पेरेंट क्लास में है, तो ये फंक्शन को मैंने चाइल्ड क्लास में यूज किया। जैसे कि मैं एंड्रॉइड का वर्जन 5 यूज कर रहा हूँ, मतलब एंड्रॉइड का किटकैट वर्जन में यूज कर रहा हूँ, तो जब मैं लॉलीपॉप में जाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मतलब जो मार्शमैलो, किटकैट से मार्शमैलो जाऊंगा तो मेरा वर्जन अपडेट होता है, लेकिन एंड्रॉइड का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहता है। तो यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन है, जो चाइल्ड क्लास क्या किया, वही डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। ओके, इंप्लीमेंट किया मतलब यहाँ पर कुछ नया फंक्शनैलिटी यहाँ पर देगा, लेकिन चाइल्ड क्लास उसके अंदर ही एक मैनेज फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, वर्ड मैनेज फंक्शन। ओके, ओके, तो यहाँ पर void मैनेज फंक्शन रह गया, तो मैं अभी इसको एक्सेस करूंगा। इसको कैसे एक्सेस करूंगा इस पार्ट में हम देखते हैं, इसको कैसे कॉल होगा। तो पहले क्या होगा, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करूंगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, पहले मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और मैं एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर मैं जस्ट ए मिनट, एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ, चाइल्ड क्लास को रेफरेंस देता हूँ, एम्प्लॉय ई इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हम रेफरेंस दे देते हैं किसको, ना मैनेजर को। ऑब्जेक्ट बनाया किसको, एम्प्लॉय का, लेकिन रेफरेंस दे दिया किसको, रेफरेंस दे दिया मैनेजर को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं चाइल्ड क्लास का जो फंक्शनैलिटी पेरेंट और चाइल्ड में है उसको कॉल कर सकता हूं। पेरेंट में डिस्प्ले है और चाइल्ड में डिस्प्ले है, तो मैं अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैनेजर क्लास को रेफरेंस देता हूं, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर क्लास को, तो ये जो ई ऑब्जेक्ट है, ई ऑब्जेक्ट के मदद से, ये ई ऑब्जेक्ट के मदद से मैं चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूं। तो चाइल्ड क्लास में कौन सा फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन, चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन है मैनेज फंक्शन, तो दो फंक्शन है। लेकिन ये बोल रहा है अगर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ए ऑब्जेक्ट के मदद से मैं सिर्फ वही फंक्शन को कॉल कर सकता हूं जो पेरेंट और चाइल्ड में दोनों में प्रेजेंट है। तो पेरेंट और चाइल्ड में ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ई ऑब्जेक्ट के मदद से मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। समझ में आया प्रियंका? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद है आपका मैनेज फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर जो ई ऑब्जेक्ट के मदद से अगर मैं मैनेज फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। ओके, इट इज शोइंग द एरर बिकॉज
दिस मैनेज फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट, तो पेरेंट क्लास में वो फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर शो करेगा। ओके, तो सो दैट हम इसको कैसे कॉल करेंगे, जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दिया था, एक दुकान क्या है ना, एक थम्स अप कंपनी से टाई अप हुआ है, तो थम्स अप कंपनी इसको एक फ्रीजर दे दिया है, तो थम्स अप का कोल्ड ड्रिंक्स रख सकता है। लेकिन वहां पर पेप्सी आ गया, तो पेप्सी बोला कि मेरे आपका यहाँ पर पेप्सी तो चल रहा है, तो मेरा भी प्रोडक्ट सेल करो। लेकिन मैं थम्स अप से राइट्स ले आया हूं, अगर मैं पेप्सी को यूज करूंगा तो पहले मुझे थम्स अप के साथ बात करना पड़ेगा, तो थम्स अप यहाँ पर क्या करेगा ना, तुम रखो और उसका जो परसेंटेज है मुझे दे देना, कुछ जो मार्केटिंग जो मुनाफा होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज है ये इसके अंदर होता है, मतलब यहाँ पर जो मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया हूं, जब मैं ईट डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूं तो करेक्ट है, ई डॉट मैनेज फंक्शन को कॉल करता हूं तो यहाँ पर एरर शो करेगा, क्योंकि मैनेज सिर्फ चाइल्ड क्लास में है, पेरेंट क्लास में नहीं है। तो आप कैसे कॉल करोगे, तो आप बोलोगे सर इतना इतना मुश्किल में हम क्यों जाएंगे, तो आप क्या कीजिए ना, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास का डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ओके, तो अगर इसको नहीं लिखकर इसका ऑल्टरनेटिव ये करने से ये एरर आता है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है ना, मैं मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, मैनेजर ए इज इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, मैनेजर एम इज इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, मैनेजर एम इज इक्वल्स टू न्यू मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट के मदद से मैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और ये जो एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट में मैं मैनेज फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्यों लिखूंगा, तो अगर ये तो मेरा इजियर मेथड है, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप सारा फंक्शन कॉल कर दो। अगर मुझे पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल करना है इधर, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा ना, सुपर कीवर्ड अगर यूज करके मैं पेरेंट क्लास का फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो ये तो बेहतर है, इससे ये बेहतर है। तो मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, एम डॉट डिस्प्ले अगर करूंगा तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन को कॉल कर देगा, सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, पेरेंट क्लास फंक्शन को कॉल कर देगा, और आप मैनेज फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो इसमें क्या है ना, जो एक होता है ना ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कुछ रूल प्रोवाइड करता है जिसको ब्रांच ऑफिस को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायनामिकली, यहाँ पर क्या है ना, हम जो फंक्शन को कॉल करते हैं इट इज डिफाइंड एट static time, means at the compile time we decide which function we have to call। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में हम बना रहे हैं it is a use of a dynamic, at run time we have to decide। मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी जरूरत पड़ा मैनेजर क्लास को रेफरेंस देने के लिए, तो मैनेजर क्लास को रेफरेंस दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक रूल भी फॉलो हो जाता है क्या ना, इस ऑब्जेक्ट के मदद से सिर्फ आप पेरेंट क्लास, मतलब पेरेंट आपको ही फ्रेंचाइजी दिया है और आपको दिया है ये चीज बेचने के लिए, तो पेरेंट ही जज करेगा आप क्या क्या बेच सकते हो, मतलब जो फंक्शन पेरेंट में है, जो फंक्शन चाइल्ड में है, वही फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा फंक्शन जो चाइल्ड में है अगर आप कॉल करते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन हम कैसे लेंगे, सो दैट परमिशन यू कैन टेक बाय यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कास्टिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो एरर आया इस एरर को मिटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, मैनेजर एम इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैनेजर लिखना है, क्लास का नाम मैनेजर, और यहाँ पर मुझे लिखना है क्या ना, ई लिखना है। तो ये करने से क्या होगा ना, ये जो ई ऑब्जेक्ट है नाउ चेक, ये जो ई ऑब्जेक्ट है, ये जो ई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेफरेंस दे दिया एम को, तो एम डॉट मैनेज अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कास्टिंग, ये चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कास्टिंग।
तो आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप जब एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम को इंटरेक्शन करोगे, एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम को इंटरेक्शन करोगे, तभी आपको क्या होगा ना, एक प्रोग्राम से अगर दूसरा प्रोग्राम आप इंटरेक्शन, प्रोग्राम का डाटा को आप दूसरा प्रोग्राम में लेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की मदद से ही लेंगे। तो आज वी आर ऑलरेडी कवर, आज वी आर ऑलरेडी नो वन ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द मैसेजेस। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करता है बाय पासिंग द मैसेजेस। वन ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्टिंग विद अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर उस तरह से है। तो आप मतलब क्या है, ये यूज करने से क्या फायदा है ना, सपोज हम फेसबुक का कोई लॉगिन, फेसबुक का नया लॉगिन में बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, फेसबुक का जब मैं नया लॉगिन करता हूं तो मुझे फेसबुक का आईडी नहीं बनाकर मैं लॉगिन विद जीमेल कर सकता हूं। फ्लिपकार्ट ओपन करना है, फ्लिपकार्ट का जो आईडी और इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन मांगता है तो हम जीमेल के आईडी से कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन को हम दूसरा एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। So it is the benefit that we are using this casting। तो ये जो कास्टिंग है, कास्टिंग में क्या होता है, हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को चेंज करते हैं। तो ये जो रेफरेंस को चेक करने के लिए एट रन टाइम व्हिच ऑब्जेक्ट यू वांट टू गो फॉर रेफरेंसिंग, so for that reason we are using here use instance of keyword। तो use instance of keyword यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक क्लास का पूरा फंक्शनैलिटी हम कॉल कर सकते हैं कास्टिंग का मदद से। कास्टिंग का मदद से एक क्लास का पूरा फंक्शनैलिटी हम कॉल कर सकते हैं। ओके, सो restore the full functionality of the class by using of casting। cast upward in the hierarchy at the implicitly। ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था ये हो गया आपका डाउनवर्ड कास्टिंग हो गया। तो ऑब्जेक्ट टाइप इट चेक एट रन टाइम व्हेन द रन टाइम एरर अकर्स। तो जो ये जो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉई ई इक्वल टू न्यू मैनेजर, वही ऑब्जेक्ट ई ऑब्जेक्ट से जब मैं मैनेज फंक्शन को कॉल करता हूं, यहाँ पर एरर शो किया, यहाँ पर प्रोग्राम एरर यहाँ पर दिखाया। So now I move to the next part। Instance of keyword example। Instance of keyword example। तो if you notice that एक छोटा सा एग्जांपल में इंस्टेंस ऑफ यूज करूंगा, आपको देखने से पता चल जाएगा।
Now check that the thing that I want to discuss you in the previous class. So now I use here class employee, manager extends from employee, class employee, manager extends from employee, director extends from employee. मतलब यहाँ पर एक parent class है, यहाँ पर एक child class है, class manager extends from employee, class director extends from employee. So these are the two one parent class, then another is the two child class that we are using. Then here I use class check instance class check instance. यहाँ पर और एक क्लास मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, उसके अंदर एक फंक्शन है पब्लिक वॉइड रिएक्ट फंक्शन. तो नॉर्मली जिस तरह से हम एक क्लास में फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया. उसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉय क्लास जो रिएक्ट फंक्शन है, रिएक्ट फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर लिए हैं. जैसे कि हम फंक्शन का पैरामीटर लेते हैं int a, string b. यहाँ पर जो पैरामीटर है एक क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर हमने डिफाइन किया. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेक करेगा ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर. अगर ये जो ई ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लास का पार्ट है तो आपको दिखाएगा दिस इज मैनेजर. और जो ई ऑब्जेक्ट है अगर डायरेक्टर क्लास को रेफरेंस दे रहा है तो आपको दिखाएगा दिस इज डायरेक्टर. अगर ई ऑब्जेक्ट ना मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है ना कि डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहा है तो ऑटोमेटिकली इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द ऑटोमेटिकली इट इज शोइंग यू दिस इज एम्प्लॉय क्लास. नाउ चेक हियर we have defined class UE is equals to UE equals to new check instance. मतलब मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है, ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया. जैसे कि नॉर्मली क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है, उसका कोई न्यू थिंग मैंने यहाँ पर नहीं किया. लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया ना, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो पेरेंट क्लास है. ऊपर देखिए यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास है, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास डिफाइन किया. तो जो एम्प्लॉय क्लास है उसका मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय ओबी. लेकिन मैं किसको रेफरेंस दे दिया, डायरेक्टर को. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बोला था एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मैनेजर क्लास को यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं. तो इस तरह से यहाँ पर भी हम बनाए क्या, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, रेफरेंस दे दिए, डायरेक्टर क्लास को हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया. तो नाउ ये जो ओबी ऑब्जेक्ट है ये ओबी ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर मैंने जो चेक इंस्टेंस क्लास जिसमें मैं रिएक्ट फंक्शन डिफाइन किया हूं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया. तो ये जो यूई ऑब्जेक्ट है, ये यूई ऑब्जेक्ट में मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया. यूई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से मैं कौन सा फंक्शन को कॉल किया, ये जो रिएक्ट फंक्शन है जो चेक इंस्टेंस क्लास में है. फंक्शन को तो कॉल कर दिया लेकिन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मेरा पैरामीटर क्या है. यहाँ पर एक अजीब पैरामीटर है, ये क्या पैरामीटर है, ये पैरामीटर हम बना रहे हैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर बना रहे हैं. तो पहले हम क्या कर रहे थे ना, हम इंटीजर is it visible? Screen is visible? Hello. Just a minute. Network problem. Okay, so now it is visible. Check here. Is the screen is visible to you? Yes, sir. Okay. Yeah. So now check here. Now
what I did here, I create a object of check instance class. ये check instance class में आपका React function है और मैं यहाँ पर क्या किया, employee class का object बनाया, रेफरेंस दे दिया डायरेक्टर क्लास को, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया डायरेक्टर क्लास को। अच्छा, ये जो चेक इंस्टेंस जो क्लास है उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया। जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ ओबी एज ए पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास किया। ये ओबी पैरामीटर कहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पर चलेगा, तो यहाँ पर देखेगा ही इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर। तो आपका यहाँ पर देखना होगा ये जो ओपी ऑब्जेक्ट आप किसको रेफरेंस दे रहे हो, डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर चेक होगा जो ऑब्जेक्ट है ये चेक यहाँ पर दिखाएगा इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, नो, तो एल्स पार्ट में वो चला आएगा। एल्स पार्ट में दिखाएगा इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर, यस इज द इंस्टेंस ऑफ डायरेक्टर, सो इट इज शोइंग यू दिस इज डायरेक्टर, यहाँ पर दिस इज डायरेक्टर यहाँ पर शो करेगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। Java C file name dot java then java file name। so it is showing you this is director। now मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं ए लाइन को कमेंट दे देता हूँ। ए लाइन को कमेंट देकर अगर मैं मैनेजर को रेफरेंस दे रहा हूँ तो अभी मैं अगर यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको दिखाएगा दिस इज मैनेजर। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास जो चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैनेजर क्लास को रेफरेंस दे दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम रिएक्ट क्लास रिएक्ट जो फंक्शन है उसके अंदर आपको रेफरेंस यहाँ पर पास किया। तो ये ओबी जाकर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पर चेक होगा, ओबी ई को रेफरेंस दे रहा है, ई इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, यस, तो यहाँ पर शो करेगा दिस इज मैनेजर। अगर मैं इस सारे को कटाकर अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय डिफाइन करता हूँ तो ये क्या शो करेगा, देखिए दिस इज एन एम्प्लॉय। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम पास कर रहे हैं ना कि ये मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है,
ना कि ये डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहा है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा ना, एल्स पार्ट का जो दिस इज एम्प्लॉय है ये शो करेगा। अंडरस्टूड? So I will share the video, you can also watch it. Still also if you have doubt, then message me, then I will explain you the part again. Okay, so tomorrow I will connect. I send the program. Okay, you just watch it. Hello, good night.